Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Dr. Shadab Shaukat, your tutor for PPG 401 Introductory Plant Breeding. And today we are going to discuss about the selfing and crossing techniques in Brassica. And what is Brassica? As we have seen in the field, there is a sarson, you can say in our local language, and from which you can make a sauce. This is also known as Brassica. And today we are going to discuss about the florobiology, selfing crossing techniques, and its hybrid seed production, how we produce its hybrid seed from cross pollination. And before going to our lecture, we should know the aims and objectives. What are the different aims and objectives of our course of content today we are going to study. After this lecture, we will be able to understand the inflorescence and arrangement of floral parts of the brassica in the flower and in the plant, that how the floral parts and inflorescence is present in the brassica, and how what is the how or what you can say what is the arrangement of that floral parts. And second one is to know the what is the best estimated or what is the best suited time for the masculation of the brassica for the pollination, and what is the best time for masculation and what is the best time for the pollination. And first of all, you know what, if you are going toward the any selfing and crossing techniques, or you want to learn the any selfing crossing technique, you should be well aware of your material required. What is the material required? First of all, you need the pointed forceps, you need the petri dish, you need camel hair brush, you need magnifying lens, you need a pair of scissors that should be very fine, and butter paper bags, 70% ethanol, or sometimes you also use 95% ethanol for your cleaning purpose, and tags. First of all, why you need the pointed forceps? You need the pointed forceps to point out the anthers from the flower, and petri dish you need for the collection of pollens, and camel hair brush you need dusting of pollen for the pollination, and magnifying you need as sometimes you have weak eyesight, or you can say you was unable to see that pollen with the naked eye, so that why you need the magnifying lens of good quality, and pair of scissors you need to cut the floral parts, and butter paper bag you need to the cover after the selfing, or you can say the after masculation, or for the plant which you can select for the pollination, you have to cover that plant with the help of butter paper bag. And at last we need the ethanol, 70% or 95% ethanol to for the cleaning purpose. Why do you need the ethanol? Because if you need that, if you have done a selfing or you have done the crossing, you have touched the anthers of one plant, and you have used that scissor, you have used that hand to masculate the other plant, that anther of the previous plant may be pollinate the other plant. So to avoid that masculation, avoid that pollination, or to avoid that 30% ethanol is needed for this purpose to avoid the chance of contamination, because when you have done that there will be the chance of contamination. And now the classification and florobiology of Brassica, and its family is Cruciferea, Cruciferea, Cruciferea. And the classification rapeseed have two: Brassica napus, which is 2 and are diploid, you can say, have chromosome number 38. The other one is Brassica rapa or Brassica campestris. Both have 2 and chromosome number 20. And in case of mustard, that have two, also the two classes, which is Brassica gensea, Juncea. Brassica gensea have chromosome number 2n is equal to 36, and Brassica carinata that have chromosome number 23. Inflorescence of Brassica is called as raceme, Receme, raceme. And this is very important thing. What is raceme? The inflorescence of Brassica is known as raceme. And flowers are pediculate and hypogynous in the nature. Calyx carries 4 sepals with 2 whorls के उसके अंदर 2 whorl होती हैं calyx के अंदर जो है. 4 petals alternate to the sepals are present in the Brassica. Petals are arranged in the form of
अ क्रॉस नोन एज क्रूसीफॉर्म, कि वो क्रूसीफॉर्म हम उसको कहते हैं कि उसके अंदर एक उस फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट होती है। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेमन्स अरेंज्ड इन द टू वर्ल्स, आउटर वर्ल इज आउटर 2 स्टेमन्स आर शॉर्टर एंड इनर 4 आर लॉन्गर। हमने बात की कि 6 होते हैं, उसमें से आउटर जो 2 होते हैं दे आर shorter and inner four are larger, and gynoecium is bicarpellate. Further is fruit is called sicula, SILLIQUA, silica. Naturally self-pollinated जो ब्रासिका है that is naturally self-pollinated crop, but sometimes its cross pollination occur due to the wind or native insect population, कि जो इसके अंदर insect pest नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी हो जाती है। लेकिन जो ब्रासिका है दैट इज सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, और इसकी जो फ्लोरल फार्मूला है दैट इज CO4 A4+2G2। ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा, तो आपने इस फार्मूला को याद रखना है जो आप लोगों को लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब भी किया गया है। देन आप लोग आ जाते हैं क्रॉसिंग के ऊपर। तो क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, इसको सेल्फिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल आप उसको कवर कर देते हैं, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू डू द सेल्फिंग ऑफ ब्रासिका, तो आप क्या करते हैं टू गेट फ्लावर्स बर्ड ऑफ द रसीम और द होल प्लांट आर बैग बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड। जिस तरह हम लोग वीट के अंदर, राइस के अंदर क्या करते हैं कि जो फ्लावर ओपन होता है उससे पहले ही हम उसको कवर कर देते हैं फॉर द सेल्फिंग, क्योंकि दोज आर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। तो उसी तरह ब्रासिका के अंदर भी हम यही काम करते हैं कि उसको कवर कर देते हैं। द बैग शुड बी लार्ज इनफ टू अकोमोडेट द ग्रोथ ऑफ एलोंगेशन ऑफ इन्फ्लोरिसेंस, क्योंकि इसका जो सनफ्लावर जो सॉरी ब्रासिका का इन्फ्लोरिसेंस है वो थोड़ा सा बड़ा था, उसको बैग इतना होना चाहिए कि वो उसको पूरा ओपन होने दे, ठीक है ना। तो ये है सेल्फिंग के अंदर। तो आपने सबसे पहले बर्ड जो है उसको सिलेक्ट करना होता है, उसको कवर करना होता है, उसके बाद उसको टैग करना होता है इन केस ऑफ सेल्फिंग। अब नाउ वी विल गो टुवर्ड द क्रॉसिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एमेस्कुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द यंगर एंड हेल्दी प्लांट विद इमेच्योर पोलन ग्रेन, कि उसके अंदर इमेच्योर पोलन हो, क्योंकि इन केस ऑफ इमेच्योर अगर वो यंगर बर्ड है तो डेफिनेटली दैट प्लांट और दैट फ्लोरल बर्ड contain the immature pollen grain. Then all the open flower and most of the then all the open floral and most of the bud of the inflorescence are clipped with the help of scissor. आपने जो उसके flowers open है उनको remove कर देना है। For carrying out the process of cross pollination emasculation मैक्सिमम 5 to 7 बर्ड्स, आपने 5 से 7 बर्ड्स को मैक्सिमम जो है ना 5 to 7 बर्ड्स उनको मैस्कुलेट करना है फॉर यू सेफ साइड। फॉर दिस पर्पज ग्रैब द बर्ड एंड ओपन द हेल्प ऑफ नीडल, आपने नीडल के साथ उसको ओपन करना है। रिमूव ऑल द पेटल्स एंड स्टेमन्स विदाउट इंजरिंग द स्टिग्मा, आपने उसकी जो फीमेल पार्ट है उसको जो स्टिग्मा उसको डैमेज नहीं करना, ये सारा काम आपने हेल्प ऑफ फोर्सेप के साथ करना है। बर्ड्स आर मैस्कुलेट, आपने उन बर्ड्स को मैस्कुलेट करना है एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द डे प्रायर द पोलिनेशन। फॉर एग्जांपल आपने प्लांट तो आपको पता है कि कल आपको पोलन मिलेगा नेक्स्ट डे, तो आपने अ डे बिफोर एक दिन पहले ही उनको पोलिनेट करवाना है। ये नहीं है कि आपको पता है कि कल पोलन मिलना है तो आप कल ही उनको पोलिन मैस्कुलेट करें, नो दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस एंड इट विल गिव द less quantity of seed, maybe poor quantity of seed. Now the buds are masculated in the process are carried out day before the pollination in the evening during the 2 to 5 pm, कि दोपहर के बाद आपने 2 से 5 बजे के दरमियान इसको मैस्कुलेट करना था। मैस्कुलेटेड बर्ड्स आर कवर्ड विद द बटर पेपर बैग, आपने सेम उसको बटर पेपर बैग के साथ कवर करना है जिस तरह हमने सेल्फिंग के अंदर बात की थी कि जो प्लांट की जो फ्लोरल बड है उसको आपने बटर पेपर बैग के अंदर कवर करना है। ये बैग का काम क्या होता है कि ये इन्फ्लोरेसेंस या जो आपका फ्लावर है उसको फॉरेन पोलन जो है उससे कंटेमिनेट होने से बचाता है, टू अवॉइड द चांस ऑफ फॉरेन पोलन और पोलन टू पोलिनेट और टू अवॉइड द चांस ऑफ कंटेमिनेशन। नाउ सेकंड प्रोसेस इन केस ऑफ क्रॉसिंग इज द पोलिनेशन। फर्स्ट प्रोसेस इज द मैस्कुलेशन। मैस्कुलेशन के अंदर क्या करते हैं कि सिंपल रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट इज नोन एज मैस्कुलेशन। तो उसके लिए हमें पता है कि आपने फ्लावर को अनओपन फ्लावर था उसको आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया उसको मैस्कुलेट किया। मैस्कुलेट आपने इस तरह से किया कि आपने उसकी जो फीमेल है उसको डैमेज नहीं करना,
ठीक है ना। निडल्स के साथ आपने जो है आपका थंब, उसके साथ आपने उसको ओपन करना है, बड़ा जेंटल सा, बड़ा प्यार से आपने उसको ओपन करना है, ताकि उसके जो आप एंथर या मेल पार्ट है उसको सिर्फ आपने रिमूव करना है, जो फीमेल पार्ट है उसको आपने अवॉइड करना है, ताकि आपका जो फीमेल पार्ट है उसको आप डैमेज ना करें, ठीक है। तो पोलिनेशन इज डन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, आपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाना है, सुबह 8 बजे से 9 बजे के दरमियान। तो इस पर्पज़ के लिए आप क्या करते हैं कि आपको हमने पहले भी देखा है ऊपर कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, पैट्री डिश। तो पैट्री डिश के अंदर आप उनकी पोलन्स को कलेक्ट करते हैं। फॉर दिस पर्पज टेक द बटर पेपर बैग फ्रॉम वो, टेक ऑफ द बटर पेपर बैग, क्योंकि हमने जो एक दिन पहले आपने मेस्कुलेशन की है, तो मेस्कुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, दो प्लांट्स को आपने सेलेक्ट करके बैग किया। एक प्लांट को तो आपने मेस्कुलेशन करके बैग कर दिया। सेकंड पार्ट जो था, सेकंड प्लांट जिसको आपने, जिससे आपने एंथर्स लेने हैं या जिसको आपने मेल पेरेंट यूज़ किया, उसको आपने क्या किया, उसको आपने उसको भी टैग कर दिया, उसको भी आपने बैग कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि आपने उसमें से एंथर्स लेने नेक्स्ट डे, तो ओपन हो के उसके एंथर्स रिमूव और हवा के थ्रू जो है कैरी भी कर सकते हैं, हवा के थ्रू ट्रेवल भी कर सकते हैं, तो आप क्या कहते हैं उसको कवर कर देते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आके आपने क्या करना है, उसका जो बैग है उसको रिमूव करना है। देन आपने उसके जो पोलन्स हैं वो कलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट द फ्लोरल बड यूज्ड एज मेल सोर्स एंड कलेक्ट द पोलन इन द पेट्री डिश। ब्रश एंड फीमेल बर्ड विद द पोलन ऑन द अनदर मेथड बाय ब्रिंगिंग द मेल फ्लावर इन द फीमेल बड। एक तो काम यह है कि आप जो फीमेल है उसको पोलिनेट करवाते हैं मेल जो है एंथर्स के साथ। किस तरह से कि आपने पैट्री डिश के अंदर पोलन्स लिए, पोलन्स लेने के बाद आप उन पोलन्स को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैमल हेयर ब्रश उसके ऊपर पोर करवा देते हैं। पोर करवा दिए जिस तरह कैमल हेयर ब्रश इज लाइक द फीमेल मेकअप ब्रश। तो मेकअप ब्रश के साथ क्या करते हैं कि वो जो कैमल हेयर ब्रश जो फाइन उसके ऊपर जो ब्रश होते हैं, हेयर्स जो है उसके ऊपर बिल्कुल फाइन से हेयर्स होते हैं, तो उसके ऊपर जाके पोलन स्टिक कर देते हैं। जब स्टिक करते हैं तो नेक्स्ट जब आप उसकी पोलिनेशन कराते हैं उसके ऊपर जाके वो स्टिक करते हैं, नेक्स्ट जो है एंथस जो सॉरी फीमेल के ऊपर जाके वो स्टिक कर देते हैं। एक मेथड ये है। द अदर मेथड, दूसरा मेथड कौन सा है कि आप क्या करते हैं कि एक प्लांट है उसका फ्लावर तोड़ के दूसरा फीमेल के ऊपर जाकर आप उसको डस्टिंग करवा देते हैं, बजाय से कि आप उसके कि हम पेट्री डिश के अंदर लेके जाएं उसको कैमल हेयर ब्रश के साथ पोरिंग करें। तो आप क्या करते हैं, फ्लावर एक तोड़ा या फ्लावर एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ है तो आप उसके ऊपर जाकर डस्टिंग करवाते हैं। दिस इज अनदर मेथड। आफ्टर कैरिंग द पोलिनेशन, जब पोलिनेशन आपने बिल्कुल जेंटल से पोलिनेशन करवा दी है, आफ्टर कैरिंग द पोलिनेशन अगेन कवर द पोलिनेटेड फ्लावर विद इट्स रिस्पेक्टिव बैग। आपने उसी प्लांट जिसको मेस्कुलेशन के बाद आपने उसके साथ कवर किया था, आपने उसी बैग को रिमूव किया, आपने पोलिनेशन करवाई, उसी बैग के साथ आपने दोबारा जो है दो अगेन उसको कवर कर देना है। क्यों कवर करना है, टू अवॉइड द चांस ऑफ कंटेमिनेशन, कि दूसरा को पोलन आके इसको पोलिनेट ना करे। रिमूव द बैग आफ्टर 4 to 5 days वंस। क्यों आपने 4 से 5 दिन के बाद उस बैग को रिमूव करना है, जस्ट टू चेक दैट फर्टिलाइजेशन इज डन एंड द फ्लावर सीड सेटिंग हैज जस्ट स्टार्टेड और नॉट, जस्ट टू कंफर्मेशन, देन अगेन पुट योर रिस्पेक्टिव बैग दैट। तो ये आती है पोलिनेशन के अंदर आपकी जो प्रिकॉशंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रासिका के अंदर आपकी जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, देन आपने सेल्फिंग के लिए आपने क्या किया, उसको प्लांट को कवर कर दिया। कवर किसके साथ किया, बटर पेपर बैग के साथ। बटर पेपर बैग आपका इस साइज़ का होना चाहिए कि जब वो फ्लावर पोलिनेशन के बाद वो अपनी पूरी एक अटेन करता है तो वो ओपन हो जाए, ठीक है ना। तो इसके अंदर प्रिकॉशंस, कोई भी आपने सेल्फिंग क्रॉसिंग करवानी है तो उसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। कौन सी प्रिकॉशंस हैं, डिसइंफेक्ट द टूल, जो हमने मैंने आपको स्टार्ट में बताया, स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द utilization of 90% or 70% ethanol. Why we use that ethanol? That is disinfectant and that remove all the anthers or that remove all the things which we have present on our instruments, which we have present on our hand, which we have sticked on our claws. आपने अपने आप को, अपने हाथों को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ एथेनॉल। क्यों, क्योंकि आपके हाथों के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर, आपके इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अगर कोई पोलन है तो वो दूसरे जो प्लांट है जिसकी आपने मेस्कुलेशन करनी है उसके ऊपर उसको पोलिनेट भी करवा सकता है, ठीक है ना। तो फिंगर्स शुड नॉट बी मिस्ड या डैम्प विद द अल्कोहल वाइल टचिंग द स्टिग्मा।
यूज़ प्रॉपर लेबलिंग, आपने लेबल या टैग किस तरह से करना है। एक टैगिंग के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है इसके अंदर, टैग आपने इस तरह से लगाना है कि टैग के अंदर 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक पहले नंबर पे आपके पास होगी नेम ऑफ क्रॉस, कि आपने क्रॉस का नेम किस तरह से लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को तकरीबन ये 10th 11th आप लोगों का लेक्चर है सेल्फिंग क्रॉसिंग के ऊपर, जिसके अंदर हमने वीट, कॉटन, राइस, मेज़, बार्ले, ओट, चिलीज, टमाटोज, ओकरा, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के अंदर सारी चीज़ें बताई हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर या प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको सारे वो नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप लोगों को सारे लेक्चर भी अवेलेबल हैं। टैग का आपको, चलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोग टैग किस तरह से लगाते हैं। तो आप लोग कमेंट्स, जो आप लोगों के यूट्यूब के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर आप बताएं कि टैग के अंदर 4 कौन सी चीज़ें हैं। तो वो आप लोगों की असाइनमेंट, आप लोग असाइनमेंट के तौर पे इसको लेके अब नीचे बताएं देख के कि टैग आप किस तरह से लगाते हैं। पहली बात। दूसरे नंबर पे ब्रासिका की क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। कौन कौन सी 2 चीज़ें पढ़ी थी कि एक हमारे पास आती है रेप सीड, एक हमारे पास था मस्टर्ड। रेप सीड और मस्टर्ड। रेप सीड के अंदर था ब्रासिका नेपस और ब्रासिका रापा या ब्रासिका कंपेस्टस, जिन दोनों ब्रासिका रापा और ब्रासिका कंपेस्टस का दोनों क्रोमोसोम नंबर दे आर सेम, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ मस्टर्ड, ब्रासिका जेनेशिया एंड ब्रासिका कंपेस्टस बोथ हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ब्रासिका कंपेस्टस जो है उसके क्रोमोसोम है 20, ब्रासिका नेपस जो है उसके क्रोमोसोम नंबर है। डिप्लॉइड की बात करें यहाँ पे हम लोग हैप्लॉइड क्रोमोसोम या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो रेपसीड के अंदर ब्रासिका नेपस 2n=38, ब्रासिका रापा और ब्रासिका कंपेस्टस दैट हैव क्रोमोसोम नंबर 20, while in case of mustard Brassica gentiana have chromosome number 36, while Brassica carinata have chromosome number 34। तो अब वापस हम लोग आ जाते हैं अपनी लेबलिंग वाली बात के ऊपर। तो लेबलिंग हम इस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ क्रॉस, कि क्रॉस का नेम क्या है। फॉर एग्जांपल आपने उसके अंदर मेल पेरेंट कौन सा यूज़ किया और फीमेल पेरेंट कौन सा यूज़ किया है। तो मेल पेरेंट जो है उसका नाम जो है वो पहले आता है, नेम ऑफ फीमेल कम्स फर्स्ट देन नेम ऑफ मेल। जिस प्लांट के ऊपर, अब इसके ऊपर बैकग्राउंड साइंस क्या है या हम इसको क्यों नेम ऑफ फीमेल पहले लिखते हैं, क्योंकि एक प्लांट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको आपने टैग लगा दिया, उसके ऊपर आपने टैग लगा दिया ना, तो अब आपको पता चलता रहता है कि इस प्लांट पे ऊपर आपने टैग लगाया है, दिस इज यूज एज अ फीमेल एंड इट्स नेम रिटन एज द फर्स्ट। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्रासिका वैरायटी, तो आप उसका नेम पहले लिख देते हैं। देन आप जिस प्लांट से आपने अदर पोल सोर्स जो था जिसे आपने वो लिए हैं एंथर, उसका नाम आपने सेकंड नंबर पे लिख दिया, ठीक है ना। यानी कि अब पहले नंबर पे क्या था, नेम ऑफ क्रॉस आ गया। इन केस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन की बात करें अभी हम ना, क्रॉसिंग के अंदर या हाइब्रिड सीड जब हम बनाते हैं, क्रॉसिंग के अंदर एक चीज़ ये आ गई कि आपने नेम ऑफ फीमेल पहले लिखना है टैग के ऊपर और नेम ऑफ मेल इनटू लिखना है, यानी कि ए इंटू बी। इस पे ए क्या है फीमेल और बी क्या है मेल। तो नंबर 1 आ गया आपका नेम ऑफ क्रॉस। नंबर 2 के ऊपर आप लिखते हैं डेट ऑफ मैस्कुलेशन के, जिस डेट को आपने प्लांट्स को मैस्कुलेट किया है। तो थर्ड नंबर पे आती है आपकी डेट ऑफ पोलिनेशन, कि आपने किस डेट को जाकर इस प्लांट को पोलिनेट किया है। दैट शुड बी द नेक्स्ट डे। फॉर एग्जांपल आज हमारे पास 13 है, तो आज हम उसको मैस्कुलेट कर रहे हैं, तो जो पोलिनेशन की डेट आएगी दैट वुड बी द 14 जनवरी 2021। तो इसी तरह ये डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और नंबर 4 के ऊपर आप क्या करते हैं, अपने सिग्नेचर्स करते हैं। सिग्नेचर्स आप क्यों करते हैं कि आपको पता चल जाए कि आप ये काम जो मैस्कुलेशन, ये जो पोलिनेशन या ये जो मैस्कुलेशन की है या ये जो आपने क्रॉसिंग करवाई है या ये जो आपने सेल्फिंग करवाई है, तो दैट वाज डन बाय यू, योर सबऑर्डिनेट, योर कोलीग और समवन एल्स, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट आपको पता चल जाता है, क्योंकि अभी हम लोग एट स्टूडेंट लेवल सिर्फ स्टूडेंट करते हैं। तो जब आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाते हैं, तो वहाँ पे एक क्रॉस नहीं हो रहा था, थाउजेंड्स ऑफ क्रॉसेज हो रहे थे और हंड्रेड्स ऑफ रिसर्चर दिस वाज डन दैट वर्क। तो ये जो काम होता है ये 100 से ज़्यादा या 100 से कम, मतलब काफ़ी सारे लोग जो इस काम को कर रहे थे। तो टू आइडेंटिफाई, टू डिफरेंशिएट योर सिग्नेचर एंड योर सबऑर्डिनेट सिग्नेचर, यू हैव टू डू योर साइन। आप उसके ऊपर साइन कर देते हैं, ठीक है ना।
तो साइन लगे आप डेट लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आपने उसी दिन ही वो साइन किए जिस दिन आपने उसकी पोलिनेशन की है। तो कुछ लोग उसके साइन के नीचे भी अपनी डेट लिख देते हैं, तो वो आप रिसर्चर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली ये चार चीज़ें आपने मस्ट लिखनी होती है: नेम ऑफ क्रॉस, डेट ऑफ मैस्कुलेशन, डेट ऑफ पोलिनेशन एंड योर सिग्नेचर्स। ठीक है। तो अब ये है क्रॉसिंग की तरफ। अगर हम बात करें सेल्फ पोलिनेशन के अंदर हमने टैगिंग करनी है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम नेम ऑफ क्रॉस को रहने देते हैं, उस वैरायटी का नेम लिख देते हैं। जब आपने उसको टैग लगाया, थर्ड नंबर पे आप अपने साइन कर देते हैं। साइन क्यों कर देते हैं? फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने कमेंट्स के अंदर लिखनी है कि आपने इसको टैग किस तरह से लगाना है। सेल्फिंग के अंदर और क्रॉसिंग के अंदर टैग का क्या डिफरेंस है। दूसरे नंबर पे रेपसीड और मस्टर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना है। तो होप सो आज की इस वीडियो के अंदर, लाइक इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग, आप लोगों की जो फीडबैक है वो भी हमें कमेंट्स के अंदर मिलती रहती है। आप लोगों का जो क्लास का ग्रुप है उसके अंदर भी वो काफ़ी फीडबैक आ जाती है। अगर आप लोगों को इसके अंदर सेल्फिंग क्रॉसिंग टेक्निक्स या फ्लोरोबायोलॉजी ब्रासिका के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333 8202 149, 0333 8202 149, 0333 820 2149 के ऊपर। या आप लोग अपने क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर पूछ सकते हैं। थर्ड थिंग इज यू कैन ऑल्सो कमेंट योर दिस यूट्यूब वीडियो डाउनवर्ड। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर भी जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पे भी रिप्लाई कर सकता हूँ। आप लोग अगर ग्रुप में क्वेश्चन करेंगे तो मैं आप लोगों को वहाँ पे भी बताता हूँ, जिससे हम लोग पहले भी डिस्कशन करते रहे। तो थैंक यू सो मच।